Welcome class 12. Today we are going to discuss about the SEBI, which is the Securities and Exchange Board of India. The Securities and Exchange Board of India is the regulator body of the capital market in India. The SEBI was established in 1992. SEBI 1992 में established की गई under the Security and Exchange Board of India Act 1992. Now the headquarters of the SEBI is situated in Mumbai, and there are different branches as scattered in all over the India, means it has many regional and local offices all over the India. Now let's see what are the functions of the SEBI and what are the rules of the SEBI in monitoring the stock exchange. So the role of Securities Exchange Board of India in monitoring the stock exchange is like that. Now first see, the SEBI was set up with the objectives of promoting the security market, protect the interest of the investors in security market, and to regulate the securities market. Okay, and SEBI issues some rules and regulation which is followed by the investors, issuers of the securities, means like corporates and the market intermediaries, etc. And the SEBI is also the regulator body of all the stock exchange in इंडिया, मीन्स इंडिया में जितने भी स्टॉक एक्सचेंज हैं उन सबको कौन गवर्न करता है? सेबी गवर्न करता है. ओके, now let's see they have the various functions of SEBI has given. So first has given to promote the interest of investors in the securities market, means जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको उनकी जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करके रखना. इंटरेस्ट इन द सेंस उनका जो कॉन्फिडेंस है, ओके, उनका जो कॉन्फिडेंस है उनको प्रोटेक्ट करके रखना, लाइक फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स through proper education and guidance as regard their investment in securities. So for that, first SEBI give the proper guidance and education as regard the investment in securities of investors. Now SEBI has made rules and regulation to be followed by the फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज. मतलब जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है, मीन्स जो भी BSE NSE जो भी स्टॉक एक्सचेंज है उनके लिए सेबी ने क्या किया है, कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए जो उनको फॉलो करने पड़ते हैं. एंड द सेबी आल्सो इश्यूज द बुकलेट्स फॉर द गाइडेंस एंड प्रोडक्शन ऑफ द स्मॉल इन्वेस्टर. जो छोटे स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी सेबी ने क्या किया है, बुकलेट्स इशू की हैं. क्यों? उनके गाइडेंस के लिए, उनके एजुकेशंस के लिए. Now SEBI has also set up the Investors Education and Protection Fund. सेबी ने अलग से एजुकेशन एंड प्रोडक्शन फंड भी क्या किए हैं, सेट करके रखे हैं, इन ऑर्डर टू मेक द इन्वेस्टर्स अवेयर ऑफ देयर राइट्स. जिससे इन्वेस्टर्स को उनके राइट्स क्या हैं, उनके अधिकार क्या हैं, वो उनके पावर क्या है, वो उन्हें पता चले. ठीक है. नाउ सेबी आल्सो मेक द अरेंजमेंट फॉर ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट लाइक ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, अंडर राइटर, मर्चेंट बैंकर. इसके अलावा सेबी ने कुछ रूल्स और रेगुलेशन भी बनाए हैं और कुछ ऐसे अरेंजमेंट भी किए हैं ट्रेनिंग के लिए. जो सिक्योरिटीज़ मार्केट में जो भी इंटरमीडियरीज हैं, ब्रोकर हैं, सब ब्रोकर्स हैं, अंडर राइटर्स हैं, मर्चेंट बैंकर्स हैं, तो उनके लिए सेबी ने क्या किया है, अलग से ट्रेनिंग अरेंजमेंट भी की है. सो तो फर्स्ट हमने देखा है कि टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स इन द सिक्योरिटीज़ मार्केट सेबी ने बहुत सारे रोल प्ले किए हैं. नाउ सेकेंड इज टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट. ओके, सिक्योरिटीज़ मार्केट को डेवलप करने के लिए भी सेबी ने बहुत से रोल प्ले किए हैं. ओके, लाइक रिसर्च किए हैं उन्होंने, पब्लिकेशंस किए हैं, मीन्स कंटिन्यूसली सेबी अंडरटेक द रिसर्च ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज फॉर इट्स इम्प्रूवमेंट. मतलब सिक्योरिटी मार्केट के इम्प्रूवमेंट के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए सेबी कंटिन्यूसली अंडरटेक द रिसर्च एंड डेवलपमेंट. And it bring out 2 monthly publication like SEBI Market Review, SEBI Newsletter, and the magazine name as the SEBI Market Review gives analysis of the primary and the secondary market during the previous month. Whereas the other magazine, SEBI Newsletters, also gives the information about the broad development in the national and international capital market. So, like that, the SEBI also done the different kinds of the research and publication in regard of the development of the securities market. Okay,
Now, to regulate the business in stock exchange and any other security market. ओके, सेबी का एक और रोल होता है कि सेबी क्या करता है, सेबी को जो भी स्टॉक एक्सचेंज में जो भी बिजनेस है उसको प्रॉपरली सेबी कि जो भी स्टॉक एक्सचेंज है वो प्रॉपरली उसमें उसका बिजनेस चलता रहे, स्टॉक एक्सचेंज के काम प्रॉपरली चलते रहे, उसमें कोई रुकावट नहीं आए। जो भी अदर सिक्योरिटीज़ मार्केट है उसमें भी कोई रुकावट नहीं है, उनका स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस चलता रहे। ये किसका काम है, ये भी सेबी का काम है। मीन्स सेबी ये प्रोवाइड करता है कि जो भी मतलब रुकावटें आती है, जो भी ऑब्स्टेकल आती हैं उसको रिजॉल्व करने का काम किसका होता है, सेबी का होता है। नाउ टू रजिस्टर्स एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ द स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफ़र एंड agent, share transfer agent, banker to an issue, trustee of trust deed, registrar to an issue, merchant banker, underwriter, and such other intermediaries who may be associated with securities market. मीन्स यहाँ पे सेबी को क्या करना पड़ता है, जो मतलब जो स्टॉक ब्रोकर है, मतलब जो स्टॉक ब्रोकर के जो वर्क है उनको क्या करना, उनके वर्क को रजिस्टर करना एंड रेगुलेट करना। लाइक जो स्टॉक मतलब स्टॉक एक्सचेंज में, इन स्टॉक एक्सचेंज इंटरमीडियरीज लाइक द स्टॉक ब्रोकर, अंडरराइटर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, पोर्टफोलियो मैनेजर, मर्चेंट बैंकर, डिपॉजिटरीज etc., they have the right to transact the dealing in securities. Means these intermediaries are required to register with the सेबी। ये जो इंटरमीडियरीज हैं इनको क्या होना चाहिए, इनको पहले रजिस्टर होना चाहिए विद द सेबी बिफोर स्टार्टिंग ऑपरेशन इन स्टॉक एक्सचेंज। मतलब स्टॉक एक्सचेंज में डील करने से पहले, ट्रेड करने से पहले ये जो इंटरमीडियरीज है जो मैंने आपको बताया, मर्चेंट बैंकर, सब ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर्स, अंडरराइटर, they all need to be registered with the SEBI. Now SEBI regulators and control their activity. SEBI क्या करती है, जो भी स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज की जो एक्टिविटी उनको रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है। एंड द सेबी आल्सो चेक वेदर दे हैव इनफ कैपिटल, इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब उनके पास प्रॉपर सफिशिएंट कैपिटल है क्या नहीं, इन्फॉर्मेशन प्रॉपर है या नहीं, और नेसेसरी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो है क्या नहीं। ये सारी बातें कौन देखता है, सेबी। एंड सेबी ये भी बोलता है इट मतलब मीन सेबी मेड हैट कंपलसरी फॉर एवरी इंटरमीडियरी टू मेंटेन सेपरेट अकाउंट फॉर ईच क्लाइंट। हर क्लाइंट का क्या करे, इंटरमीडियरी एक सेपरेट अकाउंट बनाए, ये भी सेबी कंपलसरी कर देता है। एंड इन केस ऑफ इरेगुलरिटीज और फ्रॉड द सेबी मीन्स सेबी कैन कैंसल और सस्पेंड द सर्टिफिकेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड टू देम। जो भी इंटरमीडियरीज को सर्टिफिकेट मिले हैं उनको कैंसिल कर सकता है इफ़ सेबी गॉट एनी इंटरमीडियरीज डिफ़ॉल्टेड। अगर कोई इंटरमीडियरी डिफ़ॉल्टेड पाया गया तो सेबी उनके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकती है। ओके, नेक्स्ट, टू रजिस्टर एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ द डिपोजिटरीज, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, कस्टडियन ऑफ सिक्योरिटीज फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ओके ना, यहाँ पर भी सेबी क्या करती है, सेबी रजिस्टर करती है और रेगुलेट करती है वर्किंग ऑफ द डिपोजिटरी। जो भी डिपोजिटरीज हैं उनके वर्किंग को भी यहाँ पे सेबी क्या करती है, रेगुलेट करती है। और जैसा कि इंटरमीडियरीज के लिए सेबी ने जो भी स्टेप्स उठाए रहते हैं वही स्टेप्स वो डिपोजिटरीज के साथ, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ, कस्टडियंस ऑफ सिक्योरिटीज़, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की रेटिंग एजेंसी, इनके लिए भी वही वर्क परफॉर्म करती है, वही रोल प्ले करती है। इफ़ एनी डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, कस्टडियन ऑफ सिक्योरिटी, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की रेटिंग एजेंसी, इफ़ इनमें से कोई भी अगर डिफ़ॉल्टेड पाया जाता है, सो मीन्स अगर इरेगुलरिटी होती है या फिर कोई फ्रॉड मिलता है तो सेबी क्या करेगी, सेबी कैन कैंसिल और सस्पेंड द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विच इज़ ग्रांटेड टू देम। इनको जो भी सर्टिफिकेट मिला रहेगा, रजिस्ट्रेशन हुआ रहेगा, वो सेबी क्या कर सकती है, कैंसिल कर सकती है। ओके, सो इस तरह के रोल सेबी प्ले करती है। नाउ टू रजिस्टर एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ द वेंचर कैपिटल फंड एंड कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड। यस, सेबी यहाँ पर भी क्या करेगी, जो भी वर्किंग वेंचर्स कैपिटल फंड के जो भी वर्किंग है उनको रेगुलेट करती है, रजिस्टर करती है और उनके ऊपर भी निगरानी रखती है। नाउ टू प्रमोट और रेगुलेट द सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे सेबी क्या करेगी,
फर्स्ट सेबी क्या करती है कि जो सेल्फ रेगुलेशन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो अच्छा होता है, बिकॉज जो एक्सटर्नल रेगुलेशन है उससे अच्छा है कि हम खुद का रेगुलेशन करें, सेल्फ रेगुलेशन करें। तो यहाँ पे सेबी एनकरेज करती है जो इंटरमीडियरीज हैं उनको एनकरेज करेगी टू फॉर्म देयर पर्सनल एसोसिएशन टू रेगुलेट देयर एक्टिविटी। मीन्स हियर द सेबी एनकरेज intermediaries to form their personal association or professional association to regulate their activities, and it also controls undesirable activities of the intermediaries to protect the interest of the investor. मीन्स यहाँ पे भी सेबी क्या करेगी, कंट्रोल करती है इंटरमीडियरीज के ऐसी एक्टिविटी को जो अनडिजायरेबल होगी। क्यों? बिकॉज ऑफ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। ओके, नाउ टू प्रोहिबिट fraudulent unfair trade practices relating to the securities market. Yes, here the SEBI prohibit the fraudulent and unfair trade practices for or malpractices in the stock market, such as the unethical and unfair advertisement, and it also bring transparency in the prices and brokerage charges by the broker. यहाँ पे SEBI ट्रांसपेरेंसी भी दिखाएगी, जो भी ब्रोकरेज चार्जेस हैं, जो भी ब्रोकर ने प्राइस लगाई हैं, जो ब्रोकरेज चार्जेस लगाए हैं वो भी ट्रांसपेरेंट होने चाहिए बाय द ब्रोकर। सो ये सारी बातें भी सेबी को ध्यान रखनी पड़ती है। टू प्रमोट इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। ओके, हियर द सेबी फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स थ्रू प्रॉपर एजुकेशन एंड गाइडेंस एज रिगार्ड देयर इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी। मीन्स सेबी यहाँ पे क्या करती है, गाइडेंस और एजुकेशन भी प्रोवाइड करती है। लाइक सेबी ऑल्सो सेट अप द इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोडक्शन फंड इन ऑर्डर टू मेक द इन्वेस्टर्स अवेयर ऑफ देयर राइट्स। मतलब यहाँ पे इन्वेस्टर्स को उनके क्या राइट्स है, क्या पावर है वो पता चले। एंड सेबी ऑल्सो मेक द अरेंजमेंट फॉर ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट लाइक ब्रोकर, सब ब्रोकर, अंडर राइटर, मर्चेंट्स, बैंकर, एक्सेट्रा। ओके, now SEBI has made rules and regulation which is followed by the financial intermediaries, and SEBI also issued the booklets for the guidance and protection of the small investors. So these all kinds of role played by the SEBI. Now to promote investors, okay, it has done. Last point is that to prohibit insider trading in securities. Okay, now here the top officials as well as managerial personnel have access to the सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, बिकॉज जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं स्टॉक मार्केट के, उनके पास सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है कंपनी की। सो सच पर्सन में मिसयूज़, ऐसे पर्सन क्या कर सकते हैं, मिसयूज़ कर सकते हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन का। सो if the top officials as well as managerial personnel have access to the sensitive information of the company, so such person may misuse such information for their own or other person's benefit. So the misuse of the sensitive information may lead to the frauds and ragging of the prices of share. उनके जो मिसयूज़ होंगे ऐसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, इससे क्या हो सकता है, फ्रॉड्स हो सकता है, वो फ्रॉड कर सकते हैं, और जो शेयर्स के प्राइजेस है उसमें भी रैगिंग कर सकते हैं। सो दिस इज़ नोन एज द इंसाइडर ट्रेडिंग। इसको क्या बोला जाएगा, इंसाइडर ट्रेडिंग, मतलब जो अंदर सब उनका अंदर से जो बातें चलती हैं। ओके, सो मतलब जो इंटरनल अफेयर है उनके। नाउ द सेबी को क्या करना है, सेबी फॉर दैट हैज़ लेट डाउन द सर्टेन गाइडेंस फॉर द यूज़ ऑफ द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उनके लिए सेबी ने क्या किए, कुछ गाइडेंस इशू किए हैं। नाउ बाय मेकिंग यूज ऑफ सच गाइडलाइंस द पर्सन होल्डिंग द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कैन बी ट्रेस्ड आउट एंड केप्ट अंडर द क्लोज सुपरविजन। सो इस गाइडलाइन का अगर यूज़ किया जाएगा जो सेबी ने निकाली है, तो जो पर्सन, अगर उस पर्सन को क्या करना है, उस जिस पर्सन के पास सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो ट्रेस कर लिया जाएगा अगर वो इस गाइडलाइंस का यूज़ करेगा तो, और सेबी उस पर क्लोज सुपरविजन कर सकती है। सो द सेबी इज़ एम्पावर्ड टू पनिश द डिफॉल्टर विथ फाइन और इम्प्रिजनमेंट। इससे सेबी को पावर रहेगा कि वो जो भी डिफ़ॉल्टर है, जो भी उस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर रहा है, जो भी इनसाइड ट्रेडिंग कर रहा है, उसको सेबी क्या कर सकती है, पनिश कर सकती है और इम्प्रिजनमेंट भी दे सकती है। सो गाइस, टुडे वी हैव लर्न द functions of this SEBI. In the next video we will come with the new topic. Goodbye, take care.